welcome back to my channel, and sorry I got late in posting this one. But today's video is super important because today I'll be sharing with you all the complete roadmap to NORCET 10. So stay connected with me, and without wasting further more minute, let's begin with the video. First we'll start with the beginners who are just like me, and in the same time I will share my journey also with you all. So first of all, for the beginners, I would say that if you are planning to take a coaching, and most of you have already taken, I know, so go with the platform you want to choose. I have taken my coaching from Nursing Next Live, so you can prefer them too. But recently I've came across with Utkarsh classes, and they have launched this new thing where they are teaching you every clinical based procedures online through videos, through proper clinical setup. So if you want to explore them, you can. So my journey started with NL, so I will share my experience for the same. So with NL, I would say that you will find great teachers. First of all, your gynae part is super important, and it is being taught by Dr. Sakshi Arora, and she is the perfect teacher for it. Whatever she teaches you is enough, nothing more is asked, to be honest. And it's not only about gynae, other subjects they taught really well. And personally, I don't think that you need to explore some other platforms for notes. If you have thorough revision of all those things which they teaches you on their platform, everything is enough for you. Yes, I have preferred you books, I know, and these books are important. Some books I have mentioned at the last, like pediatrics, because मैंने pediatrics इनसे नहीं करी थी just because they uploaded some videos in plan C later on, so मेरे पास time नहीं बचा था, तो मैंने pediatrics खुद से करा था. But if you people have time and you can do it right now, so their platform is enough. But one drawback which I felt कि इनके जो notes आते हैं, they give you printed notes, but वो एक books की form में आता है, and वो वैसे नहीं आते जैसे उनकी e-notes पे publish हैं उनकी app पे. तो make sure you make your own notes, because what जो ई नोट्स गिवन है वो ईजी हैं, यू नो, टू लर्न एंड टू सी एंड टू रेफर. बट जो बुक्स आती हैं दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव टॉट यू. सो डोंट रिले ऑन द नोट्स, जस्ट लाइक मी. खुद के नोट्स बनाना और जल्दी जल्दी बना लेना, बिकॉज नोट्स आर टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो मेरे साथ एनएल का एक्सपीरियंस ये था, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. जस्ट फोकस ऑन मेकिंग नोट्स फर्स्ट. पहले नोट्स बना लेना, उसके बाद रिविजन में फोकस करना. बट नोट्स बनाते टाइम भी यू नीड you need to be fast, otherwise you will spend a lot of time of yours in making notes. This was for the people who have taken coaching or who are planning to take coaching. But अगर कोई self study करना चाहता है, believe me, self study will give you equal results. If you want to do self study, refer the books which I have already discussed in my previous video. I will put the link in the description box, you can check it from there. So you can start a preparation journey from the books. But again, whether you are doing taking coaching or you are learning everything from the books, I will personally recommend you all that please keep your sources limited. Don't think that you will do one part from this, the other from that, and in the same circle you get stuck, and with all a lot of stuff at the end you fail that from where, which end, what you studied. So please don't do it. So once you are done with your notes making, it will take a lot of time. But yes, in the beginning also, train your mind in such a manner and your hands also कि तुम्हें एक क्राइटेरिया सेट करना है, जैसे मैंने सेट करा था डेट बाय जून और बाय द एंड ऑफ मे मुझे अपने नोट्स ख़त्म करने ही करना है. ठीक है, तो मुझे टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लगा था. यू कैन सी फ्रॉम जैन टू मे आई वॉज मेकिंग माई नोट्स. सो क्योंकि वास्ट सिलेबस है तो टाइम लग जाता है. बट येस, ये भी चीज़ देख लेना, वो मैं बताऊंगी आगे कैसे, कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन कि सारा और उल्टी सीधी चीज़ों के भी तुम नोट्स बना रहे हो. जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट मेक दीज नोट्स. जो तुम्हारे ई नोट्स में है वो होगा, वहाँ से पढ़ लेना उनको, उनके एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ एज यू ऑल नो कि हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं. टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी सेज कि देख जाना पेपर से पहले, बट इतना कुछ जितना मैंने चेक कर लिया है इतना आ नहीं रहा है. मेजर सब्जेक्ट्स मेन फोकस है, दैट इज़ योर MSN, your fundamentals, your gynae, pediatrics, your community,
एंड मेंटल हेल्थ, दीज आर योर मेजर सब्जेक्ट्स, इन पे फोकस है तो इनका तुम्हें थोरो पता होना चाहिए. इसमें भी देयर इज वन ट्रिक दैट यू कैन डू कि यू कैन गो थ्रू योर PYQs प्लस मेरी वीडियोज आगे आएंगे जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगी. बट फॉर यू ऑल्सो आई वुड से कि गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, see that which topics are getting repeated from which subject and pay your thorough attention to those topics. These are the fixed topics. और ये सच बात है. I have seen it in my NORCET 9 that previous year questions are getting repeated. Some questions are even getting repeated in the same manner. So can you think? And minor subjects I would say कि मत जाओ सब पे. माइनर सब्जेक्ट्स पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दिस विल आई ऑल्सो गिव अ डिटेल वीडियो टू यू ऑल. एंड मेजर सब्जेक्ट्स शुड बी योर मेन फोकस. आई एम अगेन रिपीटिंग, मेजर सब्जेक्ट शुड बी योर मेन फोकस राइट नाउ. उनके नोट्स, उनका थोड़ा रिविजन तुम्हें बहुत अच्छे से होना चाहिए बिकॉज दिस विल कवर योर 70% ऑफ द पेपर और मे बी मोर देन दैट. सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ योर रिविजन पार्ट. मेरे दिमाग में भी हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि कैसे करना है, हो ही नहीं रहा है एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि कितने दिनों बाद कौन सा टॉपिक रिपीट करना है. तो इस चीज़ पे आई विल नॉट गिव यू अ फिक्स्ड बाउंड्री, आई विल नॉट सेट अ फिक्स्ड बाउंड्री फॉर यू ऑल. सी, एवरीबडीज लर्निंग पैटर्न इज़ वे टू डिफरेंट. सबको अलग स्पीड पे, अलग कंसिस्टेंसी से लर्न होता है. तो आई वुड से कि वंस यू आर डन विद ऑल योर नोट्स, जैसे मैं थी तो मैं नोट्स में से भी पढ़ लेती थी, जो रिटन नोट्स है मेरे को ई नोट्स भी चल पड़ जाते थे, मैं किसी से भी पढ़ लेती थी. ठीक है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर जैसे आपको सही लगता है वैसे पढ़ सकते हो. ठीक है, वंस यू हैव कम्प्लीटेड योर नोट्स मेकिंग देन गो फॉर रिविजन. और रिविजन में क्या करना है, जो फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट टॉपिक नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर सबसे पहले जाना है, जो भी आपका फेवरेट है. माइन वॉज गायनी, आई स्टार्टेड विद गायनी, सो यू कैन प्रेफर विच एवर इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, and then start revising गायनी. अब गायनी रिवाइज कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्टेड रिवाइजिंग गायनी, तो एक तो होता है, एक हमें भी पता होता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लस आई ऑलरेडी डिसाइड कि जो तुम्हें लग रहा है फिक्स टॉपिक्स एंड गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सबसे मेजर फोकस जाना चाहिए वहाँ. तो स्टार्टिंग विद योर रिविजन, तो मेन फोकस होना चाहिए जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं, जैसे रिपीटेड टॉपिक्स जो बार बार कवर किए जा रहे हैं एग्जाम में, उन पे पहले फोकस करना है, उनको पहले रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है. रिविजन के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने बैठोगे, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए फिक्स डेज रख देना. जैसे गायनी 10 डेज 12 डेज जितने भी हैं, स्टार्टिंग में जितने भी लगेंगे, तो इस हिसाब से यू हैव टू सेट योर डेज. और ऐसे सेट करने हैं लास्ट के 3 मंथ्स अगर आप रिविजन में दे रहे हो तो ऐसे देने हैं कि एटलीस्ट 1-2 बार, मतलब एक तो नहीं 2-3 बार तो हो जाए एटलीस्ट रिविजन. ठीक है, तो दिस यू नीड टू फिगर आउट. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जैसे कि जब आप अपने नोट्स मेकिंग करोगे तो नोट्स मेकिंग में ये भी नहीं करना है कि पूरे दिन नोट्स बनाए और रात को नोट्स बना के सो गए. नहीं, नोट्स बनाए, एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट गो थ्रू द नोट्स जो आपने बनाए हैं. बिकॉज जब आप वीडियोज देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स आर गोइंग इनटू योर हेड. अगर आप सोने से पहले एक बार उनको रिवाइज भी कर लोगे ना, नॉर्मली रैंडमली भी, बिलीव मी वो बहुत हेल्प करेंगी, वो दिमाग में रह जाती हैं. बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग योर मोर सेंसेस, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं. तो ये टाइम जब आप वापस से रिविजन करने बैठोगे, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, तो जब नोट्स बना रहे हो उस दिन भी एट द एंड उनको रिवाइज करना है, एक आध बार करना है, और हो जाता है. इतने ज़्यादा नोट्स नहीं बन जाते एक दिन में कि आपसे रिवाइज ना हो. ठीक है, एंड रही बात आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो अगर आपने से नोट्स बनाना शुरू करा है, बाई चांस यू स्टार्टेड विद गायनी, तो गायनी के जितने टॉपिक्स के आपने नोट्स बना लिए हैं, साथ साथ आप उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज द बुक्स आई ऑलरेडी मेंशन, तो उनसे कर सकते हो. साथ साथ आप अपने PYQs कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आपने वीकली कर लिया PYQ सॉल्व एक, या फिर आपने हर 4-5 डेज में एक PYQ सॉल्व कर लिया. स्टार्टिंग में तो आई नो कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट ठीक है, आपने गायनी उठाई है तो आप गायनी वाला पार्ट वहाँ से सॉल्व कर लो. ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को देखते रहो, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बाकी टॉपिक्स से, उन टॉपिक्स को लिखते रहो. दिस हाउ यू विल गेट टू नो. तो एट द एंड आपके पास एक नोटबुक होगी जिसमें लिखा गया होगा कि ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट से, और अगर आपसे जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को मार्क करके रख लेना. एंड माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि PYQs के लिए ये करना कि अगर जहाँ से PYQs मिल रहे हैं, इफ़ यू विल नॉट फाइंड फ्रॉम एनीवेयर, you can DM me on Instagram, I will send you the links.
तो आप उनके फोटोस्टेट निकलवा सकते हो. दैट वुड बी एन ईजी. यू कैन मार्क द टॉपिक्स देयर एंड यू विल हैव एन ईजी आइडिया एट द एंड. नाउ द मेजर थिंग विल बी फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज आई विल रिकमेंड कि लास्ट के जो 3-4 मंथ्स होते हैं या 3 मंथ्स आर सफिशिएंट, उसमें लेना. एंड उसमें भी जब आप रिविजन शुरू करोगे तो बट ऑफ कोर्स अब आपको पूरा टेस्ट सीरीज में तो पूरा टेस्ट पेपर आएगा, बट आपसे पूरा भी सॉल्व नहीं होगा. मेरे से भी नहीं होता था. एंड दिस यूज टू ब्रिंग माई मोरल डाउन कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ये है वो है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. जैसे जैसे आपकी सब्जेक्ट होल्ड बढ़ती जाएगी, सब्जेक्ट रिविजन होता जाएगा, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो टेस्ट सीरीज आपने लास्ट के 3 मंथ्स में लेनी है. स्टार्टिंग में वीकली टेस्ट देना है या फिर एवरी 4 डेज में एक टेस्ट, या वीकली इज इनफ. उसके बाद आपने इसे 1 महीने बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. तो टेस्ट सीरीज शुड बी केप्ट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. एंड उसको भी ऐसा नहीं करना है कि यू शुड टेक इट एज अ प्रेशर ऑन योर हेड. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आफ्टर गिविंग ईच टेस्ट, go through the questions, analyze your mistakes, analyze the topics which you have not covered properly. ठीक है. It is very helpful. It's time for the students who have given their notes at this time or the previous times but has not cleared the mains. So उनके लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आई गेस नोट्स मेकिंग आपकी प्रॉपर है, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर. डोंट क्वेश्चन योर नोट्स टू बी ऑनेस्ट. And do one thing, just analyze the mistakes. Next, I want you people to see that you are lacking in the theory part or in your questionnaire part. So there were some people who came to me and they said कि प्री तो हो गया but मेंस नहीं हो पाया, and मुझे लगता है कि मेरी अभी थ्योरी में कुछ लैकिंग्स हैं. तो इफ़ यू फील लाइक योर थ्योरी इज़ द थिंग विच यू आर लैकिंग, और तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि पहले अपनी थ्योरी को एकदम से फिर से आई शुड से कि पॉलिश इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन दी क्वेश्चंस फर्दर. और ये सबके लिए ही है, बिकॉज अगर थ्योरी प्रॉपरली पॉलिश नहीं है और थ्योरी पे आपका होल्ड अच्छा नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, क्वेश्चंस अच्छे से होंगे ही नहीं जब तक थ्योरी आपकी पॉलिश नहीं है. I know everybody says कि question practice is required. It is required for time management and all, but the issue is कि जब तक theory hold अच्छा नहीं है, questions अच्छे से नहीं होंगे, हमेशा morale down होगा. तो first polish your theory. Third thing which I want you people to look at your question practice. And if you think you are lacking question practice, you should start with your topic wise question practice thoroughly. Also PYQs are must. I can say it that I'm pretty sure that you people have not gone through PYQs properly, just like me. So go through your PYQs thoroughly, see each topic, thoroughly see it, which topic is getting repeated. I'm again saying focus on it. It will definitely help you in in learning theory also. थ्योरी में भी वो इतना पॉलिश हो जाओगे कि इतना बेटर हो जाएगा कि यू विल गेट टू नो कि यार मैं इतने टाइम से तो इतना फालतू चीज़ें पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये तो पूछी ही नहीं जा रही हैं, तो वाई टू स्टडी दोज थिंग्स जब वो आ ही नहीं रही हैं. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लैक कर रहे हो, विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यू शुड डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम टेस्ट सीरीज. लाइक एक फुल टेस्ट दो विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन अ प्रॉपर टाइम सेटअप. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि प्लीज़ अपने दिमाग में ये मत रखना कि प्री जो है वो 1 लाइनर्स में आता है तो वो 1 लाइनर्स की फॉर्म में ही आएगा, या फिर मेंस में ही वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और 1 लाइनर्स दोनों की रखना, क्योंकि इस बार प्री में उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए थे. बिलीव मी, उनके जो ऑप्शंस थे वो भी इतने लंबे थे कि वो समझने और पढ़ने में टाइम भी जा रहा था. तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करोगे टेस्ट सीरीज से, जब भी फुल टेस्ट दोगे, इतने अच्छे से करना. और टेस्ट सीरीज तो आई विल टेल यू इन माई फर्दर वीडियो कि कौन सी बेटर रहेगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि यू शुड गो फॉर अ टेस्ट सीरीज जहाँ से 1 लाइनर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड कम आ रहे हैं. तो यू शुड गो फॉर अ टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको दोनों मिले, इक्वली मिले, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चले. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टिल दिस was the complete things which I wanted to share. If I have left something, you can ask in the comment section. And till then, stay connected with me. And if any doubts are there, please put down in the comment section. I will definitely answer. As you can see, I always answer. So you can ask anything if you want to. And stay connected with me till then. And in the next coming videos, I will post about the important topics or the recommended test series for you.
So subscribe, like, comment, and till then, take care. Bye bye.